پھر اس کے علاوہ جو سینئر ترین پالیٹیشنز آ رہے ہیں، یہ سب سیکھنے کے بعد میں جہاں بھی خامی دیکھتا ہوں، وہ میری پارٹی کی ہو، دوسری پارٹی کی ہو، اس کو میں جنگ کا درجہ تو نہیں دیتا، لیکن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا میں اپنی ذمہ داری پوائنٹ آؤٹ کرنا ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ان خامیوں کو، مگر آپ پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کو آپ کی پسند کا عہدہ نہیں ملا اس لیے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ پھر بجٹ کے اوپر آپ نے تنقید کی، کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پارٹیز اس طرف چل رہی ہیں جس کے لیے عوام ان کو لے کر آئے تھے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ عرض کر دوں کہ میری اپنی ذاتی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں نے اپنی ذات کو دیکھنا ہوتا تو مجھے وزارت کی پیشکش کی گئی، مجھے وفاق کا اہم ترین جو ایک قلمدان ہے واٹن پار کا، وہ مجھے سونپا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے۔ پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز درکار ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں اور اتنے گمبھیر ہیں کہ ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے، اور یقین جانیے کچھ چیلنجز تو ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی جماعتوں سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اور 1985 سے لے کر 2008 کی اسمبلیوں میں رہے ہیں اور ان کا حصہ رہے ہیں، اور طویل سیاست اور سیاسی جو ہے وہ اپنا دیکھے ہیں، اپنا اتار چڑھاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنے سنجیدہ مسائل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے ایمانداری سے قومی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کے مستقبل کو، اپنی بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نے صحیح منصوبہ بندی نہ کی، ہم نے آواز نہ اٹھائی اور ہم خاموش تماشائی بنے رہے تو ہم بھی مجرم ہوں گے۔ مگر شاہ صاحب، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جو ابھی آپ آواز اٹھا رہے ہیں اس میں آپ کی پارٹی کی کسی ممبر کی آپ کے ساتھ آواز شامل نہیں ہے، تو یہ اب آپ کس پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے؟ فریہ، بات یہ ہے کہ پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں جن کی آواز میری آواز سے ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں اظہار کر رہا ہوں برملا، اور وہ نجی محفلوں میں، نشستوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کو میں بھی سیکنڈ کروں گی کیونکہ یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہے، مگر کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس وقت الیکشن آئیں گے؟ دیکھیے، بات کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، آپ نے اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ اپنے آپ کو جواب دے ہیں اور آپ نے اپنی الیکٹریٹ کو جواب دے ہیں۔ لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، آپ کو اعتماد کا ووٹ دیا ہے، پاکستان کے اور ہمارے حلقے کے لوگوں نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے، تو کچھ ان کے آئیڈیلز تھے، کچھ ان کی خواہشات تھیں، کچھ ان کے مسائل تھے جن کے حل کے لیے انہیں ہمیں بھیجا ہے، اور اگر ہم وہاں خاموش بن بیٹھے رہیں اور ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور ان کے جو درینہ مسائل ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ دیکھیے نا، آپ نے کہا میں نے بجٹ پہ تنقید کی، دیکھیے اس وقت عام شہری کا مسئلہ کیا ہے؟ عام شہری کا مسئلہ مہنگائی ہے، عام شہری کا مسئلہ امن عامہ ہے، عام شہری کا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ اس بجٹ میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، میں اپنی بجٹ تقریر میں جو میرا انالیسس ہے میں ایمانداری سے پیش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق کریں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق نہ کریں۔ مگر ماری میمن صاحبہ، ہاں سے ہاں ملانے والی بات ہو رہی ہے، وہ زمانے شاید اب چلے گئے کہ یس سر اور یس میم کہہ کے آپ پارٹی میں رہ سکتے تھے، آپ بڑی ووکل ہیں اپنی پارٹی میں بھی۔ مجھے بتائیں ابھی آپ اس وقت کدھر ریپرزینٹ کر رہی ہیں ماری میمن صاحبہ؟ آپ نے جو دھرنا ہوا عمران خان صاحب کا، آپ ادھر بھی موجود تھیں، ادھر دوسری طرف جب بجٹ ہو رہا تھا تو آپ نون کے ساتھ آواز ملائی تھی خلاف بجٹ کے، جبکہ آپ کی پارٹی ساتھ تھی۔ آپ کس جگہ پر ہیں اس وقت؟ میں صرف اور صرف حق کی سائٹ پہ ہوں اور عوام کے حقوق کے سائٹ پہ ہوں۔ تو جو لوگ بھی صحیح کازز کے لیے باہر نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے ان ایشوز پہ آواز اٹھائیں گے۔ ہم کسی کی الاپ نہیں کر رہے، ہم کسی کے ساتھ جو ہے جس طرح سے آپ نے کہا نون کے ساتھ جیسے بجٹ میں ان کے ساتھ کی بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ہے۔ جیسے ابھی بہت امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ اس وقت ٹائم آ گیا ہے کہ کازز کے بارے میں سوچا جائے، پاکستان کے بارے میں سوچا جائے اور پارٹی سے بالا تر ہو کے سوچا جائے، کیونکہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ جب بجٹ اچھا نہیں ہوتا ہے تو ہمارا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنا رائے کا اظہار کر سکیں۔ تو وہ میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن کھڑی ہوئی آپ پاکستان مسلم لیگ کا کیسے ساتھ ہیں؟
लेकिन अगर वही राय कोई और भी कर रहा है, जैसे मखदूम साहब भी अभी वही राय कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी राय का इजहार करने का सबको हक है। अब बात सारी ये आती है कि मैंने अपनी पार्टी की मुखालफत किसी उसूली बुनियादों पे की, और वो जो पॉइंट है वो है कि उन्होंने जो अलायंस की है पीपल्स पार्टी के साथ, उस पे मैंने खुल के मुखालफत की है, और मैंने जो है दरख्वास्त की है कि मैं अपोजिशन बेंचेस पे बैठूं, ताकि मैं अपना जो है हक की सियासत को आगे कर सकूं, आवाम के इशूज उठा सकूं। साहब, आपने जब माफी मांगने का कहा मियां नवाज शरीफ को, उसके बाद माफी तो कोई नहीं आई, मगर आप फिर उनके साथ मौजूद थे स्टेज के ऊपर। वो भी मैंने आज भी कोई मांगे ना मांगे, मैं बात एक करना चाहता था कि हमने बहुत सारे मौक़ों पे, मैंने तो जिंदगी में 8 या 9 महीने ज़िया-उल हक की कैबिनेट में था, 9 साल मैंने मुखालफत की ज़िया-उल हक साहब की। अब 85 की असम्बली में भी मैं मशहूर में मैं नहीं आया, ना मैंने गवर्नरियाँ ली, ना मैं उधर किया, मैं सीधा चलता रहा कि ज़िया-उल हक को मैंने कहा कि आप डिक्टेटर हैं, आपका कोई राइट नहीं है असम्बली के सामने तकरीर करने का। और ये रिकॉर्ड की बातें, मेरा एक लंबा सफ़र है इस से, तो मैं सबको कहा, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने आसिफ जरदारी साहब को भी कहा, मैंने असफंद ज़ियार वली को कहा, इसके बावजूद कोई नहीं मांगता माफ़ी, मैं उनका गिरबान तो नहीं पकड़ सकता। आप समझते हैं मियाँ साहब ने तकलीफ नहीं उठाई है? जी, मियाँ साहब ने तकलीफ नहीं उठाई है? नवाज शरीफ साहब ने तकलीफ बहुत उठाई है। एक वजीर आजम मुल्क का 2/3 मेजॉरिटी का, उसके ऊपर जाके कोई बंदूक रख दे और कहे कि तुम असम्बली तोड़ो और वो असम्बली ना तोड़े, हम ये नहीं कह सकते कि तकलीफें नहीं उठाई। मैं मुझसे सारे आगे हैं सारे, मगर फिर जिन्होंने तकलीफ दी उनको भी तो माफी मांगनी चाहिए। वो वाली कुव्वतें जो आके सियासी कुव्वतों को नहीं चलने देती, उनसे भी तो कहीं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं उनके लिए तो मैंने जंग लड़ी है सीधी फ्रंट पे जाके, जब किसी और ने नहीं लड़ी। मेरी आवाज थी इस मुल्क में, आप भी। मैं समझता हूँ कि ये कह क्यों रहा कि अगर हम माफी मांग लेंगे तो सोच रहे होंगे कि आइंदा फिर ये किया तो फिर मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। उस वजह से फौज और उनकी हुकूमती तरीक़ेकार का हमेशा के लिए खात्मा करना है। माफी ऐसे नहीं कह रहा था, मैंने कहा कि हम ये तहिया करें, ऐलान करें, बल्कि कौमी असम्बली के सामने एक बहुत बड़ा स्टेज होना चाहिए जिसमें हम में से हर लीडर आके कहे कि मैं कौम से माफी मांगता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? इस कौम को हमने कुछ समझा ही नहीं है। जब तक उससे नहीं माफी मांगेंगे तो हमारे ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। ये तो हमारी मुख्तसर सी बात थी। कोई उसके अंदर ये नहीं है कि अगर कोई नहीं मांगता, वो नहीं मांगना चाहते, तो मेरा इसके ऊपर, मैं तो समझता हूँ कि हमारा काम ये था। देखिए, मेरे सियासी तौर पे जितनी जेल में वक्त गुजरा है, वो और तक के ज़िया-उल हक साहब के दौर में भी मेरी बराह रास्त जंग थी ज़िया-उल हक साहब से, और इससे भुट्टो साहब के दौर में भी जब उन्होंने दूसरी पार्टी को काम नहीं करने दिया था, मैं उस वक्त भी लड़ रहा था। मैं तो उस वक्त सियासत में था जब अभी नवाज शरीफ नहीं थे, शहबाज शरीफ नहीं थे, और 70 से सियासत में मैदान अमल में खड़े थे। मगर आप समझते हैं कि आपका जो स्ट्रेचर है, आपकी पार्टी ने उसको समझा है, आपको उस तरीके से वहां पे रखा है जो आपका मकाम है? अब एक अजीब बात है, मैं फिर जो कह रहा हूँ, मैं स्ट्रेचर अपना खुद जानता हूँ। अगर सच्ची बात करूंगा तो वो कौम की बात होगी और मैं उसका अमीन हूँगा। पार्टियां तो आपको स्ट्रेचर नहीं मानती, नहीं कभी नहीं मानती, नहीं मानती, कोई नहीं मानता, पीपल पार्टी नहीं मानती। मियां साहब तो कहते थे मैं बदल कर आया हूं। मियां साहब ने तो कल भी कहा कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मैंने कहा चलो बड़े भाई होने की ये उम्र का मसला छोड़ दे, बड़ा भाई होना ज्यादा बेहतर है। बात ये है कि क्यों लोग बात कर रहे हैं। मैं अभी जैसे शामूर साहब ने कहा है, मालवी ने कहा है, ये लोग, मैं तो समझता हूँ ये आप आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे उस काफिले के साथी हैं जिसका अमल मैंने 1970 से शुरू किया था कि पार्टियों को आगे बोलो, बात करो, खुल के करो, वरना ये लीडर जो है वो जमहूरियत पसंद भी हों, डिक्टेटर हो जाते हैं जब उनको पावर मिलती है। डिक्टेटर, और वो रोकना है आपने, और कैसे रोकना है? शाह महमूद साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि कुर्बानियां बिला शुबा हाशमी साहब ने भी दी, आपको भी मौके मिले थे जब आप दूसरे लोगों के साथ अलायंस कर सकते थे। ये तमाम जो फीलिंग है, एक अच्छा जज्बा है, क्या इसको किसी नए प्लेटफॉर्म पे लाएंगे? कोई नया इत्तेहाद, कोई नई पार्टी बन सकती है?
देखिए, सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता, और सियासत में अब जो आने वाला दिन है उसको आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आइडियली स्पीकिंग आपकी हद्दुल वसा कोशिश होनी चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म से आप हैं वहां खड़े होकर आप अपनी आवाज बुलंद करें, हक और सच का अलम बुलंद करें, और वहां लोगों को उनके जमीर को झंझोड़ें और लोगों को कायल करें। मेरी कोशिश जारी ये है। बात कही जाती है कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी कुछ हजार वोटों से आप जीतते आए हैं। अगर पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो फिर शायद आप अपने हल्के में भी नहीं जीत सकेंगे। तो सन 2002 में जब मुझे वजीर आजम का कैंडिडेट मेरी पार्टी ने नामजद किया था तो मुझे हार नजर आ रही थी। बिल्कुल वाज़ेह था कि मुशर्रफ साहब ने नामजद कर दिया है और मीर जफरुल्लाह खान जमाली मुल्क के वजीर आजम होंगे, लेकिन मैंने हार कबूल की थी और उस हार में मेरी जीत थी और उस हार में जमहूरियत की आपने जीत बड़ा थी। इंटरेस्टिंग जवाब दिया, हार के जीतेंगे, मगर कहां से, प्लेटफॉर्म क्या होगा? हाशमी साहब, आप कभी सोच सकते हैं मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का? नहीं, मैं नहीं सोच, अभी तक ऐसा कोई मरहला नहीं आया। मुझे पार्टी के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज से इख्तलाफ है, उनका उसके ऊपर मैं आवाज़ बुलंद करता रहता हूँ। मुझे जहाँ तक पार्टी छोड़ने का मैंने नहीं सोचा, सोचने की जरूरत आप नहीं। इमरान खान साहब के धरने पे चले गए, इमरान खान साहब से डायरेक्ट लड़ाई है, एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं आपको बताऊं, इमरान खान जिस तरीके से उस महाज पे जाके खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ड्रोन अटैक्स के खिलाफ कौम मेरी आवाज़ पे आए, मुझे उसने फ़ोन किया, मैंने कहा इमरान खान मुझे कुछ आगे पीछे का पता नहीं है, लेकिन तुम अगर महाज पे खड़े हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कैसे हुआ ना हुआ धरना, लेकिन मैंने कहा मैं हाजिर हूँ जहाँ गोलियाँ उस जगह यहाँ गोलियों की और धमाकों के इम्कानात हो सकते हैं। मैंने कहा इसके लिए मेरी जान हाजिर है। अगर मुल्क के लिए कुछ करना है, कोई भी कहेगा, मुझे फिर कोई आवाज देगा, मैं जाऊंगा। मगर लोगों ने कहा कि एजेंसीज की सपोर्ट थी उस धरने को, आपकी मुझे वैसे मैं आपको बात कहूँ, मैं जब कह रहा हूँ इमरान खान को भी पता होगा, एजेंसीज को भी पता होगा, पार्टी हमारी को भी पता होगा, बखुदा मुझे तो बल्कि दूसरे दिन मैंने टीवी पे जब सुना वो कह रहा था मेरी जनरल पाशा से मुलाकात हुई थी, तो मुझे पहली दफा पता चला कि इमरान खान की शायद कोई मुलाकात होती है, वरना मैं तो समझता था कि जैसे वो भोला भाला लड़ रहा है, अगर वो आवाज दे रहा है, इसकी आवाज पे तो हमें लबैक कहना चाहिए। आप पे भी इल्जाम लगाया गया, आपकी मुलाकातें तो नहीं हुई कभी इस किस्म की किसी लीडरशिप से? किससे मुलाकात कराना चाह रही हैं मेरी? किसी जनरल से, किसी सीनियर ऑफिसर से? नहीं, मेरी जब भी मुलाकात हुई थी, जब मैं एक मनसब पे था, तब मेरा जो कलमदान था उसकी नौयत ऐसी थी कि मुझे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ राब्ता रखना पड़ता था। उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मावी साहब, आप भी मौजूद थी धरने के ऊपर, आपको दावत भी दी इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, क्या कभी कर सकती हैं आप ऐसा? देखिए, उस वक्त जब इनविटेशन धरने की आई थी, जैसे मखदूम जावेद हाशमी साहब को आई थी, तो मुझे भी इमरान साहब ने फोन किया था और मैंने भी कॉज की खातिर उस धरने में शिरकत की थी। और आपको पता है उस वक्त मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन मैं पहुंची क्योंकि वो कॉज बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद उनके वर्कर्स ने वहाँ इनविटेशन दिए, तो ये बहुत एक जो है एक उनकी तरफ से एक अच्छी बात है कि उन्होंने इनविटेशन दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल हम कोई नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि हम कॉजेज में साथ हैं। जिसने भी आवाज उठाई है वो साइड लाइन नजर आया पार्टीज में। आपकी जमहूरी पार्टीज कितनी तैयार हैं इस नई सियासत के लिए? मियां साहब आपसे अकेले में क्या कहते हैं, ये जरूर बताइएगा मुझे। मियां साहब से मेरी अकेले में कभी मुलाकात ही नहीं हुई। पुरानी सियासत का वक्त खत्म हो चुका है, नई वक्त आ चुका है, तब्दीली यकीनन चाहिए। कहा जाता है मीडिया ने बहुत सारी तब्दीलियां पाकिस्तान में लेकर आ गया है, मगर क्या हम ये तब्दीली ला सकेंगे कि जमहूरियत सेटअप को बदल सके? खुद जमहूरी ताकतें जो कि सबसे ज्यादा प्रचार करती हैं जमहूरियत के अंदर, वो अपने अंदर कितनी जमहूरियत लेकर आ सकती हैं? और जो आवाज उठाता है क्या उसको बजा तौर पर सुना जा सकता है? क्या ऐसा मेकअप हम अपनी पार्टीज का कर सकेंगे जहां पर जो भी हक की आवाज हो उसको यकीनन अप्रिशिएट किया जाए, कोई डर के मारे कोई बात कहने से चुप ना हो जाए? यही बात हमने आज करनी थी। पुरानी सियासत का तब्दील करने में आप क्या समझते हैं? डू राइट टू अस ऑन newsbeat@sama.tv, newsbeat@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन न्यूज़बीट विद फरिया अदरीस। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।